تین خبر اس حوالے سے آپ کے لیے سب سے اہم ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ احتجاج کا کتنا اثر ہوتا ہے عوام کی طاقت میں، عوام کی رائے میں، اور سڑکوں پر نکلنے کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر شمس تبریز قاسمی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خبر در خبر میں خوش آمدید۔ متنازع شہریت ایکٹ یعنی CAA اور NRC کے خلاف پورے ملک میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور یہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ 19 دسمبر کو پورے ملک میں احتجاج ہوا، آج یعنی 20 دسمبر کو بھی ملک کے بیشتر حصوں میں احتجاج ہوا ہے اور آئندہ دنوں بھی جاری رہے گا۔ خاص طور سے دہلی، ممبئی، بنگلور، حیدرآباد، چنئی، بھوپال، پٹنہ جیسے بڑے شہروں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے شہروں، دیہاتوں، گاؤں اور قصبوں میں بھی مسلسل احتجاج ہو رہا ہے اور اس احتجاج کا اثر حکومت پر دکھنے لگا ہے۔ ایسا آپ کو نہیں لگنا چاہیے کہ آپ کا احتجاج ضائع ہو رہا ہے۔ BJP اور امیت شاہ یا نریندر مودی اتنے پاورفل ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ اس احتجاج کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ احتجاج کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اور ابھی حال ہی میں امیت شاہ نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ چاہے لوگ جتنا احتجاج کر لے، ہم اپنا قدم واپس نہیں لیں گے۔ ایسا نہیں ہے، سرکار کو جھکنا پڑتا ہے، عوامی دباؤ کے سامنے سرکار اپنا فیصلہ واپس لیتی ہے اور اس کے آثار دکھنے لگے ہیں۔ اور تین خبر اس حوالے سے آپ کے لیے سب سے اہم ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ احتجاج کا کتنا اثر ہوتا ہے عوام کی طاقت میں، عوام کی رائے میں، اور سڑکوں پر نکلنے کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ پہلی خبر ٹائمز آف انڈیا کی ہے۔ ٹائمز آف انڈیا نے بھی 1 گھنٹہ پہلے یہ خبر اپنی ویب سائٹ پر شائع کی ہے کہ حکومت نے ان لوگوں سے یعنی ہوم منسٹری نے جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان سے اپیل کی ہے، ان سے درخواست کی ہے کہ CAA میں ترمیم کے لیے وہ اپنا سجیشن بھیجے۔ اس میں کیا ترمیم کی جا سکتی ہے، اس قانون کو کیسے بدلا جا سکتا ہے، اس میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے پروٹیسٹر اپنا سجھاؤ دیں، اپنا سجیشن دیں۔ پہلی خبر۔ دوسری خبر اس حوالے سے یہ ہے کہ BJP نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ایک اپنا پرانا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ اس ٹویٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ پورے ملک میں NRC نافذ کی جائے گی اور یقینی طور پر پورے ملک میں NRC نافذ ہوگی اور ہر ایک گھسپیٹیوں کو ملک سے باہر نکال دیا جائے گا سوائے بدھسٹ کے، سکھ کے اور ہندوؤں کے۔ یہ بہت اہم ٹویٹ تھا اور جس کے ذریعے صاف طور پر ایک طرح سے کہا گیا تھا کہ مسلمان گھسپیٹیے ہیں، انہیں ہندوستان سے باہر نکال دیا جائے گا۔ لوک سبھا الیکشن کے دوران BJP نے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا تھا۔ آج BJP نے اپنا یہ ٹویٹر ہینڈل اپنا یہ ٹویٹ وہاں سے ڈیلیٹ کر دیا ہے اور دا کوئنٹ نے اس کو رپورٹ کیا ہے اور آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ ٹویٹ آپ کو نہیں ملے گا، وہ ٹویٹ کیا ہے اسکرین پر آپ ہمارے دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری سب سے اہم خبر یہ ہے کہ BJP نے مسلم علماء سے یعنی دارالعلوم دیوبند کے محتمی مفتی ابوالقاسم نعمانی سے، اجمیر کے سجادہ نشین زین العابدین صاحب سے، شاہی امام احمد بخاری صاحب سے اور جو دیگر علماء ہیں، مولانا سید ارشد مدنی، مولانا محمد مدنی، اس طرح کے جو لوگ ہیں جو مذہبی رہنما کہلاتے ہیں، ان سے BJP نے اپیل کی ہے کہ آپ ان لوگوں کو بتائیے، ان لوگوں کو سمجھائیے کہ قانون مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، CAA سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور NRC کا بھی اعلان نہیں ہوا ہے، اس لیے کسی کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی انڈین شہری کو باہر نہیں نکالا جائے گا۔ اور چوتھی اہم خبر یہ ہے کہ کل یعنی 19 دسمبر کو BJP نے یعنی حکومت نے اردو اور ہندی کے تقریباً سبھی اخبارات میں ایک اشتہار شائع کرایا۔ اردو اخبارات میں اردو میں اشتہار شائع ہوا، ہندی میں شائع ہوا اور جس میں کالم بنایا گیا، ایک طرف جھوٹ کا، ایک طرف سچ کا، اور کہا گیا کہ ایک ریومر پھیلایا جا رہا ہے CAA کو لے کر کہ یہ غلط ہے، حقیقت یہ ہے، یہ غلط ہے، یہ حقیقت ہے۔ یعنی اس میں یہ کہنے کی کوشش کی گئی کہ CAA کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے، اسے جو بنگلہ دیش، افغانستان اور پاکستان میں جو مائنورٹیز ہے یعنی ہندو، سکھ، عیسائی، انہیں وہاں اگر ستایا جاتا ہے تو ہندوستان میں شہریت دی جائے گی، مسلمانوں کو ہندوستان سے باہر نہیں نکالا جائے گا، اس لیے مسلمانوں کا جو ہندوستان کے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ دوسری بات، اس اشتہار کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ ابھی سرکار نے NRC کا اعلان نہیں کیا ہے، نہ بھی یہ منصوبے میں شامل ہے مکمل طور پر کہ اگر NRC ہوگی تو کس طرح کی NRC ہوگی، کس طرح ڈاکومنٹس لیے جائیں گے، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کسی بھی انڈین شہری پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ پورے اشتہار کا یہ خلاصہ تھا اور یہ کہنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں،
ये गुमराह कुन बुनियादों पर कर रहे हैं, गलत प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर कर रहे हैं, इसलिए लोगों को इससे बाज आ जाना चाहिए। इस पूरे इश्तिहार का खुलासा था। इसके अलावा हुकूमत ने 13 सवालों के जवाब पर एक एडवाइजरी भी जारी की, जिसमें 13 क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। उन 13 क्वेश्चन का जवाब दिया गया है, और जिसमें जो खास बात है वो एनआरसी के हवाले से ये कहा गया है कि अभी एनआरसी का ऐलान नहीं हुआ है। जब एनआरसी का ऐलान होगा तो वो एनआरसी असम के एनआरसी से अलग होगी। असम में एनआरसी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक हुई थी, वहाँ लेगेसी और लिंकेज डॉक्यूमेंट्स को अहम माना गया था। लेकिन जो पूरे मुल्क में एनआरसी होगी वो एनआरसी अलग नौयत की होगी, और उसमें कोई भी एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स है तो उसकी बुनियाद पर उसको शहरी तस्लीम किया जाएगा, उसका नाम आएगा एनआरसी का। उसमें यह भी कहा गया है कि एनआरसी का मतलब है कि एक शहरी खाता बनेगा जिसमें तमाम शहरियों का इंदराज होगा, और उसमें इंदराज जिस डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर होगा उसको सरकार ने जो अभी तक वाज़ेह किया है, क्या है कि उसमें बर्थ सर्टिफिकेट होगा, या जो स्कूल की टीसी होती है उसको माना जाएगा, पहचान पत्र को माना जाएगा, आधार कार्ड को माना जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस को माना जाएगा, या ज़मीन का या फ्लैट और मकान का जो कागज़ है उसको भी माना जाएगा। यानी तमाम तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको मोतबर माना जाएगा, उसकी बुनियाद पर एनआरसी में नाम आ जाएगा। अगर किसी के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी उसको कहा जाएगा कि जहां वो रहता है वहां से 1-2 आदमी को बुला कर लाए जो उसकी गवाही दे कि यहीं का शहरी है, यहीं पैदा हुआ है, बाहर का नहीं है, तो भी उसका नाम शामिल कर दिया जाएगा। और जो एक कमेटी बनाई जाएगी, जो अफसरान होंगे उसके जिम्मे ये सब कुछ होगा। तो सरकार ने ये सब कुछ एडवाइजरी जारी की है और ये बताने की कोशिश की है कि एनआरसी से घबराने की जरूरत नहीं है, एनआरसी में किसी को बाहर नहीं निकाला जाएगा। और कई जगह उस फहरिस्त में एडवाइजरी में मुसलमानों का जिक्र किया गया और कहा गया कि मुसलमानों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद जो वजीर कानून है, उन्होंने बीपी न्यूज़ को बाज़ाब्ता इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू को देखकर ऐसा लगता है कि खुद उन्होंने मैनेज किया था, कहा था। चूँकि कई मरतबा ऐसा होता है कि जब हुकूमत को या वज़रा को अपनी कुछ बात कहनी होती है तो चैनल से खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा इस इशू पर इंटरव्यू कीजिए। कभी चैनल वाले एंकर्स रिपोर्टर्स मुतालबा करते हैं, कभी ये लोग अपनी बात पहुंचाने के लिए ज़राए का इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरव्यू को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो खुद चलकर यहाँ है। एक और मिनिस्टर ने इस तरह की बात की है, और अब बीजेपी के लोग और जो मीडिया चैनल्स हैं वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे मुसलमानों का नुकसान नहीं होगा। लेकिन मुसलमान सरापा एहतजाज बने हुए, और मुसलमानों का ये कहना है कि इस कानून के ज़रिए पहले सीए को लाया गया है, उसके बाद एनआरसी लाई जाएगी, और यकीनी तौर पर इस कानून के ज़रिए ये होगा कि मुसलमान और हिंदू सभी का नाम बाहर निकलेगा। आसाम में हुआ, सरकार कह रही थी कि सिर्फ मुसलमानों का नाम नहीं आएगा, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो 19 लाख में 13 लाख हिंदू और गैर मुस्लिम, और मुसलमान तकरीबन सिर्फ 5 और 6 लाख रह गए हैं। तो इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में होगा, जितनी भी वो अदावत करे, दुश्मनी करे, लेकिन नाम सबका बाहर निकलेगा। लेकिन इस मुतनाज़ शहरियत तरमीमी एक्ट की वजह से हिंदू और या मुसलमानों के अलावा जितने सबका नाम शामिल हो जाएगा, मुसलमानों का नाम छट जाएगा, और उन्हें कहा जाएगा ये गैर मुल्की है या सेकंड दर्जे का शहरी बनाया जाएगा। और इस शक को, इस खदशे को सरकार अभी तक दूर नहीं कर पा रही, इसलिए मुसलमान पूरे मुल्क में सरापा एहतजाज बने हुए हैं, और इस सरापा एहतजाज को ख़त्म करने की सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन मुसलमान बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। उनका एहतजाज जारी है। मुसलमानों का एहतजाज इस बुनियाद पर भी है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट है, मज़हब का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर मज़हब की बुनियाद पर हिंदुस्तान किसी को शहरियत क्यों दे रहा है? अगर पाकिस्तान में हिंदू परेशान है, बांग्लादेश में हिंदू परेशान है, तो म्यांमार में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। और इस वजह से जुल्म हो रहा है कि म्यांमार का कहना है कि जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं, और रोहिंग्या में मुसलमानों के साथ कुछ हिंदूज भी है, ये सब इंडियन नस्ल के हैं, इंडिया से आए हुए हैं, इसलिए हम अपने यहाँ किसी शहरियत नहीं देंगे। श्रीलंका में तमिल हिंदू पर जुल्म होता है, भूटान में ईसाइयों पर जुल्म होता है, तो वहाँ के लोगों को भी हिंदुस्तान क्यों इस बिल में शामिल नहीं कर रही? इस बुनियाद पर भी लोगों का एहतजाज है, और यही वो बुनियादी नुक्ता है जो हिंदुस्तान के दस्तूर और आइन से कानून मुतसादिम है, जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों के अलावा इस प्रोटेस्ट में हिंदू बड़ी तादाद में शरीक है, दलित शरीक है, सिख शरीक है, ईसाई शरीक है, यानी तमाम सेकुलर अक़दार के हामिल अवाम इस एहतजाज में शरीक है। और जो बड़े बड़े नाम इस एहतजाज में आ रहे हैं वो हिंदुओं का आ रहे हैं। योगेंद्र यादव का ले लीजिए, अपूर्वानंद का ले लीजिए, रामचंद्र गोहा का ले लीजिए, जिनको कल बेंगलुरु से गिरफ्तार कर गया। तो ये सारे बड़े बड़े नाम हैं जो इस एहतजाज में शरीक है और इस कानून को काला कानून बता रहे हैं।
और सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं कि इस कानून को वापस ले। जब तक ये कानून होगा हम एहतजाज करते रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान सबका है। मजहब की बुनियाद पर हिंदुस्तान में कभी किसी को शरीयत नहीं दी जा सकती है। हिंदुस्तान में 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की है। अगर वो मजहब की बुनियाद पर इम्तियाज़ बरतते तो बताइए क्या मुसलमानों के अलावा किसी और मजहब का कोई नामो निशान यहाँ होता? लेकिन सारे मज़ाहिब की तहजीब मौजूद है, कल्चर मौजूद है, ज़ुबान मौजूद है, और 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की। इसका ही मतलब है कि मजहब की बुनियाद पर कभी कोई इम्तियाज़ नहीं बरता गया। लेकिन ऐसी हुकूमत है जिसको सिर्फ 6 साल हुए हैं और मजहब के नाम पर यह सरकार इम्तियाज़ बरत रही है। और जहाँ जिस रियासत में मजहब दाखिल हो जाती है वो रियासत उमूमन तबाह बर्बाद होती है, नुकसान का सामना करना पड़ता है। और इसलिए जो सेकुलर अवाम है वो सरकार के इस कदम की सख्त मजम्मत कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि सरकार वापस ले। मतनाज़ शहरियत एक्ट के खिलाफ जो एहतजाज हो रहा है, यह एहतजाज तशद्दुद की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। और कल भी आज भी पुलिस और अवाम के दरमियान झड़प हुआ। मीडिया में सिर्फ एक तरफ की खबर दिखाई जा रही है कि प्रोटेस्ट कर रहे लोग, मुजाहिरीन या प्रोटेस्टर पुलिस पर पत्थर बरसाते हैं, पुलिस को मारते हैं। लेकिन अवाम पुलिस पर पत्थर क्यों बरसाते हैं, अवाम पुलिस से क्यों उलझती है, इसको मीडिया नहीं दिखा रही है। उमूमन ये होता है कि लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, अपनी बात करना चाहते हैं। जमहूरियत में प्रोटेस्ट बुनियादी हक है और पुलिस प्रोटेस्ट करने से रोकती है। कल की खबर देख लीजिए कि कल दिल्ली के लाल किला के इलाके में, पार्लियामेंट स्ट्रीट के इलाके में, जंतर मंतर पर और मुल्क के दीगर हिस्सों में पुलिस ने प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दे रखी थी। सब लोगों को परमिशन मिली हुई थी। अचानक सुबह में पुलिस ने हर एक की परमिशन कैंसिल कर दी और दफ़ा 144 लगा दिया। लोग गए प्रोटेस्ट करने पहुंचे तो कहीं पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, कई जगह पुलिस ने उनको मारा। रद्द अमल में अवाम भी पुलिस पर पत्थर बरसाती है या गुस्सा पर काबू न पाने की वजह से वो कुछ अटैक करती है। लेकिन मीडिया में सिर्फ एक तरफ की खबर दिखाई जाती है और सच्चाई यही है कि अगर पुलिस चाहे तो मामला कुछ नहीं बिगड़ सकता है। ना तो कहीं बस जलेगी, ना पुलिस वैन जलेगी, ना मीडिया की गाड़ी जलेगी। लेकिन जब पुलिस एहतजाज नहीं करने देती है या पुरअमन एहतजाज कर रहे लोगों पर हमला करती है, पत्थर बरसाती है, तो फिर अवाम भी गुस्से में आ जाती है और वो पुलिस पर गुस्सा उतारना शुरू कर देती है। हिंसा पुलिस की तरफ से हो या अवाम की तरफ से हो, दोनों काबिल मजम्मत है और मिल्लत टाइम्स इसकी शदीद मजम्मत करता है। लेकिन पुलिस के रवैये को देखने की जरूरत है। और एक और बात जो बार बार सामने आ रही है कि जिन स्टेट्स में बीजेपी की हुकूमत है वहाँ पुलिस लोगों पर अटैक कर रही है, मुजाहिरीन पर हमला कर रही है और इसी की वजह से वहाँ झड़प के वाक़ात सामने आ रहे हैं। अब तक 15-16 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें सिर्फ उत्तर प्रदेश में 6 मुजाहिरीन की मौत हुई है और ये सारी मौत पुलिस फायरिंग में हुई है। आसाम में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और ये मौत भी पुलिस फायरिंग में हुई है। बेंगलुरु में 2 मौत हो चुकी है और ये मौत भी पुलिस फायरिंग में हुई है। जमहूरियत में एहतजाज करना बुनियादी हक है, लेकिन पुलिस एहतजाज कर रहे लोगों पर फायरिंग कर रही है, उन पर हमला कर रही है। और जितने स्टेट्स का हमने नाम लिया जहां हालात बिगड़े हैं वहां बीजेपी की हुकूमत है, तो सरकार जो बीजेपी है कहीं ना कहीं इस एहतजाज को दबाना चाहती है, लोगों की आवाज़ को कुचलना चाहती है। लेकिन लोग अपनी आवाज़ दुनिया के सामने रख रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि हम इस कानून के खिलाफ हैं और जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है हम खामोश नहीं बैठेंगे। यही फ़र्क देख लीजिए कि एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें ये देखा जा रहा है कि एक बच्चा पुलिस वाले को पत्थर मार रहा है। एक दूसरी तस्वीर वो है जिसमें कुछ गर्ल्स, कुछ बॉयज़ पुलिस वालों को फूल पेश कर रहे हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस ने बर्बरियत का मुजाहरा किया था, फायरिंग की थी, लाइब्रेरी में घुसकर मारा था। वो बच्चे और बच्चियां पुलिस को फूल पेश कर रहे मोहब्बत में, बट मीडिया में या जो माहौल को जो लोग ख़राब करते हैं वो सिर्फ वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि बच्चे पुलिस पर पत्थर चला रहे हैं। वो ये तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं दुनिया को कि लड़कियों ने पुलिस को फूल पेश किया है और नफ़रत का जवाब, दुश्मनी का जवाब उन्होंने मोहब्बत से दिया है। तो ये मीडिया जो हमारा है, एक दो चैनल को छोड़ लीजिए तो सबसे ख़राब रोल प्ले कर रहा है और ये दिखा रहा है कि आवाम हिंसा कर रही है। हिंसा ज़्यादातर पुलिस की तरफ से हो रही है और यही वजह, जब पुलिस की तरफ से हिंसा होती है तो आवाम भी बेकाबू हो जाती है। और फिर कहीं पर आपने वीडियो में देखा कि पुलिस को आवाम मार रही है। यकीनन ये सही नहीं है, लेकिन पुलिस के रवैये का जायज़ा लेना ज़रूरी है। एक और बात कि जो एहतजाज पूरे मुल्क में हो रहा है,
इसकी कोई क़यादत नहीं है, कोई शख्स इसको डील नहीं कर रहा है, खुद आवाम सड़कों पर निकल चुकी है और इस तहरीक का आगाज़ स्टूडेंट्स ने किया है। और जब पढ़े लिखे लोग, यूनिवर्सिटीज़ के लोग सड़कों पर उतर जाते हैं तो उसे दबाना आसान नहीं होता है। न कोई तन्हा एक शख्स के हाथ में पूरा प्रोटेस्ट है जिसको सरकार हाईजैक कर सकती है, सरकार दबा सकती है। इसलिए सरकार के लिए ऑप्शन है कि वो इस कानून को वापस ले, मुजाहिरीन से बातचीत करे और जो मुतालबा है उसको पूरा करने, वरना ये लोग मानने वाला नहीं है और इस तरह के नुकसानात का और सरकार को सामना करना पड़ेगा जो मुल्क के हक़ में बेहतर नहीं होगा। मुल्क ऐसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है। कल की खबर देख लीजिए, 19 दिसंबर को जब पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहा था तो सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट से 26 फ़्लाइट कैंसिल हो गई, जिसमें से 19 फ़्लाइट सिर्फ इंडिगो की थी। 20 से ज़ायद फ़्लाइट का टाइम बहुत ज़्यादा बदल गया और वो फ़्लाइट भी बाद में कैंसिल हो गई ऑलमोस्ट। तो ये सूरत हाल, इतना बड़ा नुकसान हो रहा है और गुड़गांव में 9 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक जाम लग गया था और मुल्क के दीगर हिस्सों में इस तरह की सूरत हाल थी। तो इस पर काबू पाना सरकार की जिम्मेदारी है। जमहूरियत में एहतजाज करना आवाम का बुनियादी हक़ है और सरकार ताकत के ज़रिए अगर उसे कुचलना चाहती है, रोकना चाहती है तो शर्मनाक अमल है। और सरकार को चाहिए कि आवाम की बात को सुने, आवाम जो चाह रही है, क्योंकि जमहूरियत आवाम से बनती है और अगर आवाम इस कानून को नहीं पसंद करती है तो सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने अपने एक तकरीर में, अपने एक भाषण में कहा था कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। इशारा कर रहे थे कि सिर्फ मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें देख लेना चाहिए कि प्रोटेस्टर मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों से ज़्यादा हिंदूज़ हैं, बरहमन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और दलित हैं और बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं, जिसमें से को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो ये पूरी तफसील है जो हम आज आपको खबर दर खबर में बता रहे हैं और इस कानून के ख़िलाफ़ दुनिया में, हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी एहतजाज हो रहा है, मिलर टाइम्स की पूरी कोशिश होती है कि उसे हम आप तक पहुँचाएँ, आप तक बताएं। जब प्रोटेस्ट होता है, कोई एहतजाज होता है तो लोग सरों को गिनते हैं कि कितनी बड़ी तादाद आई है, लेकिन इस कानून के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में और मुल्क नहीं दुनिया भर में इतनी जगहों पर एहतजाज हो गया है, उन मकामात को, उन जगहों को गिनना मुश्किल हो गया है और सैकड़ों जगह पर रोज़ाना प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और यही इस बात की दलील है कि जो मुजाहिरीन हैं उनकी जीत एक न एक दिन होगी। और मिलर टाइम्स जहाँ तक कोशिश होती है हम सबको दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके इलाके में, आपके ख़त्ते में इस तरह का कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसकी तस्वीर, उसकी वीडियो हमारे व्हाट्सएप पर आप भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको कवर करें। इसके लिए हमें 1-2 मज़ीद बंदे या एक्स्ट्रा रिपोर्टर रखने की ज़रूरत है और इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए हमें आपका माली ताउन चाहिए। मिलर टाइम्स का जो पूरा निज़ाम चलता है, इसकी जो वेबसाइट है, 3 ज़ुबानों में यूट्यूब चैनल है और दीगर प्लेटफॉर्म्स है, तो ये सब हम आपके ताउन से चलाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि आप मिलर टाइम्स को अपना माली ताउन भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन में तमाम तफसीलात मौजूद है।